Bismillahirrahmanirrahim. So we are now discussing the poetry, life and works of William Wordsworth, born in 1770 and died in 1850. So William Wordsworth was born in Cockermouth, which was a place in the mountains of London, which he always cherished in his poetry. He was an English poet whose lyrical ballads, written in 1798 with the help of S.T. Coleridge, it made them start the English Romantic movement. So this was the beginning of it. Basically, lyrical ballads के बाद जो romanticism as a movement that we find कि इसकी बाकायदा initiate हुआ with the publishing of the lyrical ballads जो कि इन्होंने कंपोज किए. लेक डिस्ट्रिक्ट जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ में है, जिसके बारे में अपनी बहुत सारी पोइम्स में बात करता है. सो ही वाज बोर्न देयर एंड ही वाज सेकंड ऑफ 5 चिल्ड्रन. एंड फादर जो था, ही वाज a prosperous estate manager. When he was 7, he lost his mother and he lost his father when he was 13. And at this time, he was sent to his uncle, and there he received excellent education in classics, literature, mathematics. But what he was most interested in वो था उसका boyhood pleasures of living and playing in the outdoors. So he was much impressed by the outdoor activities, especially in the lap of the nature, जिसको वो हमेशा से cherish करता था. And in his poem, The Prelude, we find कि उसमें हमेशा he talks about those outdoor activities which he continued when he was a kid in Lake District. So इसमें जो natural scenery थी, natural scenery का इस पे बड़ा एक strange impact था. The same natural scenery could terrify him, and the same could give him the love of a mother. So he says that I grew up fostered alike by beauty and the fair. So the beauty or fair जो nature का है, this is one of the important questions about Wordsworth when we talk about subjective exams, कि वो beauty और fair को देखता है nature में, कि nature में से beauty नजर आती है, nature में से fair नजर आता है. तो basically ये क्या इन aspects को हम discuss करेंगे while talking about Prelude Book 1 or Prelude poem. इसमें basically we find the growing boy and the confidence he articulated in Trenton Abbey. The nature never did betray the heart that loved her, though there was fear in that too. लेकिन nature हमेशा उन लोगों का साथ देती है जो उससे मोहब्बत करते हैं. So this was his whatever he felt about nature. St. John's College, Cambridge में ये move हुआ 1787 में, but he felt that he was not for that hour, nor for the place, क्योंकि वो जो competitive pressure था, जो एक बड़ी fast life थी लंदन की, जिसमें materialistic attitudes, materialism बहुत ज़्यादा था. So he was all entirely a different kind of a person. So उसके पास क्या था कि जो उसने college time में किया, कि devote his summer vacation in 1790 to a long walking tour through the revolutionary France. तब ये था 1789 में वो revolution आया. तो उससे पहले he was making a walking all around. उसमें गिरफ्तार भी किया गया थोड़े अरसे के लिए. 1791 में he came back to France again. And then he formed a passionate relation with a French woman, Annette Vallon. लेकिन इससे पहले कि they could give birth to a child, Wordsworth को वापस आना पड़ा इंग्लैंड में 1792 में, और फिर उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड की जंग चलती रहती थी. So for a long time he could not go until his daughter Caroline was 9 years old. So 9 years ये बाप बेटी आपस में नहीं मिल सके. आगे क्या था कि life was tough in England, और ये उसके लिए darkest time था, और like he was not prepared for any profession. He was virtually penniless.
ही वाज रूटलेस इन अ वे कि इसने कुछ ऐसा इसके पास था ही नहीं सेटअप जिसकी बेस पे ये कमाई कर सके. And he was bitterly hostile to his own countrymen's opposition to French. And he, इसके साथ जो radical people थे like William Godwin, उनके साथ इसने मिलके एक sympathy develop की abandoned mothers के लिए, beggars, children, vagrants, victims of English wars. So ये काफी हद तक जो English सक्सेसेस की बेस पे कुछ वो लोग जो अपनी जान हार चुके थे, जिंदगी हार चुके थे, अपना फाइनेंस हार चुके थे, तो इसने उन लोगों का साथ दिया. सो ही रोट फॉर द पीपल बेसिकली. इसने उन लोगों के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में लिखा जिनको कोई पूछता नहीं था. दिस डार्क पीरियड वाज एंडेड इन 1795. एक दोस्त की लेगेसी थी, उसने वर्ड्सवर्थ की थ्रू दैट ही मेट हिज बिलव्ड सिस्टर डोरथी अगेन, and then they remained together till the rest of their life. After that we come to know about the partnership between Wordsworth and Coleridge. ये बड़ा मार्वलस ईयर था 1797 से 98 तक का, जिसमें वो दोनों इकट्ठे रहे और इन दोनों ने मिलके काम किया. Coleridge was a friend and also a mentor for Wordsworth. So Wordsworth को वो काफी टिप्स देता था और उसके साथ मिलके ये दोनों like please don't share your screen, Nurul Sabah. Wait, let me do something of it. Let me see. Nurul Sabah, if you're listening to me, please stop sharing your screen. People cannot see my screen this way. So I hope you can see my screen now. So yes, you can pin my screen anytime if someone presents in between. Like this is a total distraction to the time and whatever we are studying, we are lost in this way. So Coleridge was more a mentor and a friend who told Wordsworth about certain writing techniques, and he basically approved his poetry. So they were in a very good collaboration, Dorothy Wordsworth, William Wordsworth, and Ashley Coleridge. So these three was all the time, they were together and they were thinking about different things related to art and literature. So Coleridge ने उसे stimulate किया और जो healing influences से nature के through his sister, Wordsworth in 1797 began to compose his short lyrical and then dramatic poems, जिसकी वजह से इसको याद किया जाता है. कुछ इसमें ट्रिब्यूट्स से इसकी सिस्टर को, कुछ डैफोडिल्स को, बर्ड्स को, नेचर को, तो या रस्टिक पीपल को जो बेसिक ह्यूमन नेचर से रिलेट करते हैं. सो ही टॉक्ड अबाउट देम जॉइंटली बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. इन्होंने जो न्यू क्लासिकल उसका डेकोरम को ब्रेक किया एंड दे केम विद सम ओरिजिनल थिंग. इनकी जो पोएम्स थी दे अपीयर इन 1798 इन लिरिकल बैलेड्स, जो कि स्टार्ट होती हैं राइम ऑन द एंशिएंट मैरिनर, जो कि वर्ड्सवर्थ एस्ट्री कॉलरिज की सबसे ज्यादा लाइक एक्लेम्ड पोइट्री है, पोएम है, एंड क्लोजेस विद वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे. सो ये एक कलेक्शन है पोइट्री की जिसके अंदर इन दोनों की कोलैबोरेशन और इनकी पोएम्स उसके अंदर हम देखते हैं, रिटन इन 1798. दैट इज इंपॉर्टेंट. इसमें वर्ड्सवर्थ का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट or describe them in a selection of language really used for man, tracing in them the primary laws of nature. अब ये बेसिकली क्या हो रहा है इसमें कि दे वर टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल. सब्जेक्ट्स को इन्होंने कॉमन पीपल में से लिया, लैंग्वेज वो ली जो कि कॉमन पीपल अंडरस्टैंड करते हैं, जिसको वो इजीली समझ सकते हैं. And then Coleridge and Wordsworth, they
like Coleridge projected his enormous poem to be called The Brook, in which he proposed to treat all science, philosophy, and religion. But he soon laid the burden of his writing poem upon Wordsworth himself, since he was dictating him, and Wordsworth was there to write it. Yeah, basically, this is one another aspect of their collaboration. 1798 में Wordsworth जो है, he started talking in the grand terms of his poem Recluse, and Wordsworth ने उसके बाद अपनी autobiographical poem को दोबारा से यानी एक तरह से start किया, which to him was a great work. Like ये वो चीज़ थी जो कि इसको लगता था कि इसके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, एंड नेक्स्ट 40 years के लिए इसने अपने आप को उसमें absorb किया, and finally it was published in 1850 under the title The Prelude or Growth of a Poet's Mind, जिसमें उसकी अपनी लाइफ को वो डिपिक्ट करता है उस पोइट्री के जरिए. Now coming to his important works. So वर्ड्सवर्थ के बहुत सारे वर्क्स इम्पॉर्टेंट हैं, इसके पास बहुत कुछ है जो कि रीडर ऑफ लिटरेचर कैन चेरिश, लेकिन let's go through in a quick way through his timeline. के 1770 when he's born, 1778 his mother is dead, 1783 father dies, then he goes to Cambridge, then he has certain evening walk, then he has a walking tour of France, Switzerland, Germany. He graduates in 1791, and in 1792 Caroline is born when he went to France, and she was her illegitimate child. He comes back in 93, and then there are wars and he cannot go. In 1794 he is reunited with Dorothy. Then he inherits a legacy of £900 from his friend. Then he meets Coleridge. Then they are together and they're working. Then Lyrical Ballad in 1798 is published. Further, we see that Wordsworth travels with Coleridge to Germany, and then Wordsworth and Dorothy finally they settle in Lake District, where they work for the most of their time. Lyrical ballads are revised, and a preface to it is written by Wordsworth. And then 1802 is married, then he has a son. Then in 1805 the Prelude is finished, and his brother is lost at the sea. In 1807 he publishes his poems in 2 volumes, and these are further poems, The Convention of Sintra and Quarrel. Then we have then he has a quarrel with Coleridge, and for some time they're not on speaking terms with each other. Exertion, and certain more poems which are written in 1814 and 15 respectively. VS7 and the River, this is important collection that was written in 1820, again by Wordsworth. Then what is important about him is his daughter. He was named Poet Laureate in 1843. His daughter dies in 1847, and in 1850 he dies himself. So this is another important contribution of Wordsworth, that is preface to the Lyrical Ballads. So this is his first work that we are discussing today. The preface to the Lyrical Ballad, this is a kind of manifesto for the Romantic movement in England. This was the beginning of Romanticism. And then he tells in the beginning that why did he write his experimental ballads the way he did. His poems and lyrical ballads, they engage with the lives of peasantry, and they're written in a very common language, जिसमें हम देखते हैं कि कोई like pomp and show नहीं है, जिसमें कोई allegorical references नहीं है, जिसमें कोई symbols नहीं है, जिसमें कोई allusions नहीं है, and all the laymen, they can easily understand his work. So इसमें
Wordsworth was all alone in this effort. Lyrical ballads उसने अपने friend के साथ लिखा, Coleridge के साथ. This was his solo venture. इसमें basically he talks more about the life of the common people as subject, or इसमें he says that this new class of poetry will also use the language of the common people. कि जिस तरह मैं लो और रस्टिक लाइफ को फोकस कर रहा हूँ, तो जो इसमें राइटिंग स्टाइल होगा वो भी कॉमन लोगों के हवाले से उनके करीब तर होगा. उसको लगता था कि उसके कंटेम्प्रेरीज की जो पोइट्री है दैट इज टू ट्रिवियल एंड क्रूड, और वो सेंसेशनलिज्म के ऊपर बेस करती है. ये कहता था मेरी पोइट्री ओरिजिनलिटी पे बेस करती है, ओरिजिनल सब्जेक्ट्स पे बेस करती है. तो सॉर्ट ऑफ पोइट्री जो है इसमें बेसिकली मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ही सेज कि ये जो है ये रीडर्स के माइंड को डल करते हैं, क्योंकि वो जो लोग थे उस टाइम के, दे वर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन. वर्ड्सवर्थ ऑन द अदर हैंड वाज गिविंग अ डिफरेंट एंड टोटली न्यू लुक टू द थिंग. जहां पे एक पोइट इंग्लैंड को बड़ा हॉरिबल प्लेस बता रहा था, फ्रांस को बड़ी टेरिबल प्लेस बता रहा था, वहीं पे वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड की डैफोडिल्स की बात कर रहा था, फ्रांस की नेचर की बात कर रहा था. सो ही वाज गिविंग अ डिफरेंट व्यू, एंड द व्यू दैट वाज मोर कॉमन within the common people. So the purpose of Wordsworth's ballad is to allow cosmopolitan readers to voraciously experience nature, so that they can be viewed from the mind-dwelling aspects of modernity. कि उसके दरमियान भी उन्हें नेचर दिखा रहा है. इतना सब कुछ जो हो रहा है डिफरेंट टेरिबल, उसके दरमियान वो उन्हें नेचर के करीब लेके जा रहा है. Then he tells the importance of emotions. He says the old good poetry is spontaneous overflow of emotions, and it takes its original form from the emotions which are reflected in tranquility. So he distanced the trivialization of poetry जो कि उस टाइम पे जारी थी, and he came up with his famous definition about poetry कि poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. He also digresses into the importance of meter. He says that meters are important. इनसे चार्म होता है किसी काम में, वर्क्स में, पोइट्री में. मीटर्स प्लेयर पैदा करते हैं. लेकिन he also agrees with this saying कि sometimes you cannot bind your thoughts within the meters. तो फिर आपको उनसे थोड़ा सा डेविएट करना पड़ता है, जिस तरह के इसकी प्रील्यूड है जिसमें we don't find meters there. एक free verse type की poem है, blank verse. Now coming to the second work, which was to him it was his greatest work, the Prelude. It was also alternatively titled as Growth of Poet's Mind, an autobiographical poem. So ये 1850 में लिखी गई extended blank verse poem. जैसा epic poems होती हैं, इस तरह in this way, this is a long narrative kind of poetry, but not an epic. Basically इसमें क्या है कि whenever he was living he could not give a title to it. His wife Mary Wordsworth later on gave the title of Prelude to this book. अब ये जो बुक है Prelude, ये basically इसकी as far as sentimentalism is concerned or instrumentalism is concerned, as far as his self-exploration is concerned, his pantheism is concerned, his love for nature is concerned, everything we find here in this book. So the book begins in the way कि वो अपने आप से questioning कर रहा है कि when I was in London, I was like a captivate, I was a prisoner like a person, जिसको लंदन to me was a cell. मेरे लिए एक डंजन था जिसने मुझे काबू किया हुआ था. Now when I'm out of London, I have plenty of time. वो जिससे कहते हैं spontaneous overflow of powerful feelings. तो लंदन में रह के इसके पास बेशुमार आइडियाज थे जिनको ये लिख नहीं पा रहा था, because he was not himself. He was not into his pure form. तो जब वो लेक डिस्ट्रिक्ट वापस आता है डोरथी के साथ, then he finds himself in the proper place जहाँ पे रह के वो अपनी पोइटिक एबिलिटीज को यूज कर सकता है. तो वहां पे
There are so many ideas which are storming in his brain. So first 100 or 200 lines तो वो इसी बात पे लिख देता है कि मैं किस टॉपिक पे लिखूं. And eventually he chooses a topic of his own self, his own life, कि मैं अपनी autobiography लिखूंगा इस poem के जरिए. And he agrees with that और अपनी life को वो उसमें लिखता है. और वो अपनी जो लाइफ के इवेंट्स हैं उन्हें एक कंपैरिजन भी करता है उसकी प्रेजेंट फ्रस्ट्रेशन और स्ट्राइफ से, कि बचपन में कैसी लाइफ थी उसकी, कैसी फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, और बड़े होके उसने उन चीज़ों को कैसा फील किया. फर्दरमोर प्रील्यूड में ही एज आई सेड कि हम इसको प्रील्यूड में डिस्कस करेंगे. सो दैट वाज अ थीम कि जिसमें ही टॉक्स अबाउट द लव एंड फेयर दैट ही रिसीव्स फ्रॉम नेचर. तो वो कहता है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स बताता है कि मैं जब हैन का वहां पे एग्स को चोरी करता था अपने बचपन में और भागता था, तो मुझे ऐसा लगता था नेचर मेरे पीछे भाग रही है मुझसे वो एग्स वापस लेने के लिए. तो मैं डरता था, मुझे एक्साइटमेंट भी होती थी. कहते नेचर मेरे लिए मदर थी और मदर की तरह वो डांटती भी थी और प्यार भी करती थी. देन ही गिव्स एन एग्जांपल कि वो डांटती किस तरह थी. ही सेज कि वंस he happened to steal a boat of some unknown person. कोई सेलर वहां पे बोट खड़ी कर गया, तो उसने उस स्ट्रीम में जाकर उसकी बोट को चोरी किया और उसको चलाना शुरू कर दिया. रात की तारीकी में एक छोटे माउंटेन को क्रॉस करके जब वो आगे आया तो एक बहुत बड़ा माउंटेन उसको सामने उठता हुआ नजर आया. तो दैट वाज ऑलरेडी देयर, लेकिन वो छोटे माउंटेन से कवर्ड था. वो जो हमारी आईज का एक लाइक अलूजन होता है, तो उस सूरत में ही कुड नॉट लाइक स्टैंड दैट हॉरर ऑफ दैट माउंटेन. तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ. उसे ऐसा लगा कि नेचर उसे डांट रही है क्योंकि उसने चोरी की. सो ही केम बैक, उसने बोट को टाई किया दोबारा जहां से उसने बांधा था, अनटाई किया था, एंड ही वेंट टू हिज होम. डरता हुआ अपने घर चला गया. तो ये उसने अपने बचपन का इंसिडेंट बताया कि ये माँ की तरह नेचर के, जब आप खुश हो तो आप पे बारिश बरसाएगी, जब आप यानी जब आप कोई गलत काम कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, तो वो आपको इस तरह डरा भी सकती है. तो दिस वाज लव एंड फेयर ऑफ नेचर, एंड दिस इज अ पोएम व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द पैंथेइज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ मोर. कि वर्ड्सवर्थ नेचर में खुदा को देखता था, खुदा की जात को, खुदा के वजूद को फील करता था, और दिस मेक्स हिम प्रॉफिट ऑफ नेचर. ये उसे पोइट ऑफ नेचर, प्रॉफिट ऑफ नेचर बनाती है. यही इसका पैंथेइज्म है कि वो नेचर के अंदर खुदा की डिपिक्शन को देखता था, कि नेचर उसे एक सोर्स बनती थी कनेक्ट करने के लिए इसके खुदा से. देन another important poem of him is Ode, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. So this is a poem in I guess 11 stanzas, जिसमें ये एक तरह से कंपैरिजन की बात कर रहा है कि वो डिस्कस करता है अपने अर्लियर इम्प्रेशंस को चाइल्डहुड की. So he says that there was a time when all the nature seemed dream-like to him, like it had celestial light in it, and but with the passage of time, the poet says that he is not, or he is unable to see that very celestial light within nature. कि वो एक तरह से कंटेम्पलेशन कर रहा है कि पहले तो नेचर में बड़ा मजा आता था मुझे, लेकिन अब नेचर के अंदर वो फीलिंग मुझे नहीं आ रही, यानी वो मुझे नेचर के अंदर वो वाली सेलेस्टियल लाइट नजर नहीं आ रही. सो सेकंड स्टैंजा में ही इज टॉकिंग about the fact that he can still see the rainbow. Rose is still of red color, it is still lovely. The moon looks around the sky with delight. Sun is shining, starlight is there, everything is beautiful. Nonetheless, the speaker feels that a glory has passed away from earth. Still he is feeling कि सब कुछ apparently तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन एक जो ग्लोरी जो एक पहले हुआ करती थी, अब वो ग्लोरी वैसी नहीं है. अब ये चेंज बेसिकली क्या आ रहा है? चेंज उसकी एज में है, चेंज उसकी थिंकिंग में है. आपको अपने गांव के शहर के रास्ते बचपन में बहुत लंबे लगते थे, लेकिन अब वो बहुत छोटे लगते हैं. रास्ते नहीं बदले, हमारी थोड़ी सी सोच बदल चुकी है, हमारा देखने का मेयार बदल चुका है. सो दिस वाज हैपनिंग विद Wordsworth in this poem. So in third stanza he says that while listening to the birds sing in springtime, और लैम्प्स को देखते हुए कि जैसे वो खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, कह रहे कि अब मुझे दुख होता है क्योंकि अब मैं वो वाली फीलिंग मेरे अंदर नहीं आ रही जो पहले आती थी.
वाटरफॉल्स की एकोस मैं सुन रहा हूँ, माउंटेन्स पे जो आवाजें गूंज रही हैं, कह रहे ये वो चीजें जो कि मुझे वापस लेके आती थी स्ट्रेंथ की तरफ, ये वो चीजें जो मुझे हील करती हैं। वो कह रहे कि his grief will no longer wrong the joy of the season and all the earth is happy, कि उसे अपने ग्रीफ को इतनी हिम्मत नहीं देनी चाहिए कि उसका ग्रीफ उसके इस टाइम की प्लेयर्स पे हावी हो जाए। Then in fourth stanza he addresses nature's creatures, और वो बताता है कि his heart participates in the joyful festival, कि जो भी नेचर का रुख है he is happy with them, he is enjoying with it, उसे ये सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। It would be wrong to feel sad on such a beautiful morning, कि ये गलत होगा कि वो ऐसी खूबसूरत जगहों पे सैड हो, लेकिन still is feeling कि what happened to that visionary gleam, वो जो एक विजनरी इसको लाइक बेनेवलेंस मिलती थी नेचर में, कह रहे वो कहाँ पे गई। ठीक है, मजा तो आ रहा है, एंजॉय तो कर रहा हूँ मैं, इस चीज को वेस्ट नहीं करता, लेकिन वो प्लेयर कहाँ पे गई जो कि मुझे बचपन में फील होती थी नेचर के हवाले से। सो ही इज बेसिकली एंजॉयिंग दैट सीन एंड आल्सो मिसिंग दैट प्लेयर। सो फिफ्थ स्टैंजा में ही टॉक्स के जो ह्यूमन लाइफ है, दैट इज अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग, that human beings dwell in a purer, more glorious realm before they enter the earth. And then he says heaven lies about us in our infancy, कि मौजें वही हैं जो बचपन में, मौजें वही हैं जो हमारी अर्लियर चाइल्डहुड में थी, जन्नत वही है, खूबसूरती वही है जो सारा कुछ हम पहले फील करते थे। He says that but as the baby passes through boyhood and young adulthood or into manhood, he sees that magic die, और वो जो मैजिक जिसकी बात कर रहा है कि बचपन में वो मैजिक फील होता है, लेकिन ऐसे ऐसे वो मैजिक खत्म हो जाता है। And then again in sixth stanza he says that the players unique to earth conspire to help the man forget the glories whence he came. तो जो आहिस्ता आहिस्ता देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि किसी न किसी चीज से फॉरगेटफुल कर देती हैं। देन उसको एक 6 साल बच्चा नजर आता है और वो इमेजिन करता है उसकी लाइफ को कि माँ ने उसको पकड़ा हुआ है, वो फिर माँ से छुड़वा के अपने आप को भागता है, बाहर की तरफ जाता है, बाहर घूमता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर लाइफ को देखना शुरू करता है, वेडिंग्स देखता है, फेस्टिवल्स देखता है, मॉर्निंग्स देखता है, फ्यूनरल्स देखता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर लाइफ की हकीकतों को समझना शुरू हो जाता है। देन ही टॉक्स इन 8th stanza दैट ये जो चाइल्ड है he may be a mighty prophet of lost truth, and he asks him why that he has access to the glories of origin, to the pure experience of nature. He still hurries towards the adult life of customs and earthly fright. कि बचपन इतना खूबसूरत होने के बावजूद इंसान की कोशिश होती है कि हम जल्दी जल्दी स्टेप इन करें जवानी के अंदर। 9th स्टेंजा में स्पीकर एक जॉय फील कर रहे दोबारा कि जो मेरी मेमोरीज हैं चाइल्डहुड की वो हमेशा मेरे साथ है, और वो मेरी इनोसेंस है, एक्सप्लोरेशन है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। 10th stanza में अगेन ही इज फीलिंग द सेम जॉय, ही शेयर्स हिज जॉय विद द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एंड ही वांट्स दोज ऑल द क्रिएचर्स टू फील हैप्पी विद हिम। और वो कहता है कि though he has lost some part of the glory of nature and experience, he will have to take solace in the primal sympathy, कि जो भी हो जाए बेशक कुछ नेचर का एक वो पार्ट खो चुका है, लेकिन still nature is the best solace or best abode. Final stanza में he is talking about the child's feeling of immortality, जो it enables him to love nature and natural beauty all the more, for each of nature's object can stir him to thought, and the simpler flower blowing in the wind can raise him in the thoughts that too often lie too deep for tears. Now all together इस पोम में वो क्या बातें कर रहा है कि वो डिस्कशन इस चीज पे लेके आ रहा है कि बचपन में यही नेचर थी जो कि बड़ा फैसिनेट करती थी, बड़ा एंजॉय करता था मैं यहाँ आके, अब क्यों नहीं हो रहा। हम भी अक्सर सोचते हैं, आप अपनी लाइफ में सोचें कि अक्सर ऐसी फीलिंग आती है कि यार पहले जब हम मरी जाते थे तो बड़ा मजा आता था, अब नहीं आता। पहले जब फैमिली मिलके बैठती थी तो बहुत अच्छा लगता था, अब क्यों नहीं लगता। पहले जब दोस्त यार मिलते थे तो बड़ा शुगल होता था, अब क्यों नहीं होता। रीजन क्या है कि अब आपकी लाइफ के अंदर आपने बहुत सारी चीजें ऐसी एक्सपीरियंस कर ली जो पहले नहीं की थी, उसमें बहुत सारी खुशियां भी हैं जो उन खुशियों से ज्यादा थी, उसमें बहुत सारे दुख भी हैं जो कि आपने पहले सोचे नहीं थे।
तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इनोसेंस से मेच्योरिटी की तरफ लेके आती हैं. सो वर्ड्सवर्थ इन द एंड रियलाइजेस कि जो डिफरेंस है वो उसकी जात के अंदर है, जो कि इनोसेंस से मेच्योरिटी का ट्रैवल है. बट अगेन ही बिलीव्स इन दिस थिंग कि नेचर की तरफ से अभी भी कसर बाकी नहीं है. नेचर अपना फुल 100% इंसान को दे रही है, और वो जो 100% इंसान रिसीव कर रहा है, अगर वो उस 100% के ऊपर रहता है तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर हिम, जो कि उसके लिए लाइफ लॉन्ग एसेट है. नाउ कमिंग टू द फाइनल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ, जिसको आज हम डिस्कस कर लेंगे. Yes, it is kind of a stages that Shakespeare used करता है, all the words a stage. So lines composed a few miles above Tintern Bay on revisiting the bank of the Wye during the tour, July 13, 1798. So this is a poem written near the Tintern Abbey, जहाँ पे ये visit कर रहा है एक river को, Southern Wales की तरफ. वो 5 साल पहले यहाँ पे आया था, और 5 साल के बाद अब वो आया है, और एक तरह से और टू इंटीमेशन वाला ही इसमें अप्रोच है जिसको इसने यूज किया, कि वो एक तरह से कंपैरिजन कर रहा है उस टाइम को और इस टाइम को अबाउट द नेचर. तो 5 साल पहले नेचर का क्या यानी एस्पेक्ट से, और अब क्या हो रहा है. सो ही लुक्स बैक ऑन द पास्ट 5 years जो कि चले गए, और फिर उसे याद आता है कि ये सीन कितना प्यारा लगता था उसे, कितना उसे याद आती थी ये जगह जब वो शहर के उन खराबियों के अंदर, उन शहर की परेशानियों के अंदर था, तो वो मिस करता था इस जगह को, इस प्लेस को. तो ये उसके लिए एक तरह से मेडिसिन थी. अब जब वो वापस आ चुका है उसी स्पॉट में, अब वो उस जगह पे दोबारा आया है, तो वो कह रहे कि द मेमोरी ऑफ व्हाट ही फेल्ट बिफोर एंड sort of how he'll look back on the moment in the future. तो वो imagine करता है कि he will change as time goes by form, and he was during the first visit a kid with a whole lot of energy, bound of the mountains. Back in the day, nature meant everything to him. Now he wants to go back, step back to his earlier childhood, जब उसके लिए नेचर सब कुछ हुआ करता था. माँ बाप को ये बचपन में खो चुका था, अब उसके लिए नेचर ही माँ थी, नेचर ही बाप था, नेचर के अंदर ही प्लेयर्स से. सो वो याद करता है उस टाइम को. ना अब आया है जब वो दोबारा आफ्टर 5 years, सो इज नॉट यूजिंग such terminologies, looking at the same things after such a huge span of time. Holy cow, the view from up here is pretty awesome. वो इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं कर रहा. वो क्या कर रहा है, वो ये यानी उसके अंदर से ही फील्स अगेन द सेम थिंग, कि उसके अंदर से वो बचपना खत्म हो चुका है. नाउ ही लुक्स एंड इज एबल टू सेंस अ डीपर वाइडर मीनिंग टू द ब्यूटी इन नेचर. ही सीज दैट एवरीथिंग इन नेचर इज इंटरकनेक्टेड. आप ये एग्जांपल ले लें कि इन दोनों पोएम्स में जो अपने अर्लियर पास्ट की बात करता है, तो वहां वो नेचर में माँ को देख रहा है. अब जब उसके अंदर एक मेच्योरिटी आई है, जो नेचर उससे मुख्तलिफ चीजों से इंटरकनेक्ट कर रही है, सो अब वो नेचर में गॉड को देख रहा है. सो नेचर उसे खुदा से लिंक कर रही है. जो पहले मदर नेचर थी, अब वो उसे खुदा की तरफ लेके जा रही है. सो अब फिर हमें ये पता चलता है कि वर्ड्सवर्थ इज नॉट अलोन, हिज सिस्टर इज विद हिम. वो भी उसके साथ है, और वो भी छोटी सी बच्ची है जैसा वर्ड्सवर्थ हुआ करता था. सो he believes कि she will also undergo the same development and transformation जो कि उसने की. अब डोरथी वर्ड्सवर्थ इस तरह एंजॉय करिए नेचर को जिस तरह वर्ड्सवर्थ पहले करता था. सो वर्ड्सवर्थ बिलीव्स कि एक टाइम आएगा जब ये भी उस मैच्योरिटी के प्रोसेस से गुजरेगी, एंड देन वो नेचर को एक फीलिंग उसके अंदर आएगी एक डिफरेंस की, और वो कह रहे कि ये भी वापस आएगी और इस जगह पे आके नेचर से बाम लेगी. सो व्हाट ही मीन्स टू से इज कि व्हेनेवर आई एम टायर्ड, तो मैं नेचर को यूज करता हूं एज मेडिसिन, एज बाम. तो जब अगर मैं भूल भी गया तो मेरी सिस्टर मेरे साथ है जो कि एज में मुझसे छोटी है, उसकी मेमोरी फ्रेश होगी, वो मुझे ये वाला बाम देगी जब मैं अगेन कभी लंदन की परेशानियों के दरमियान होगा. अपार्ट फ्रॉम these are his major works, lyrical ballads जो कि 1798 में लिखे गए, और इसके अंदर ये आपके सामने पोएम्स जो कि इसका हिस्सा थी. साइमन ली, वी आर 7, द टेबल्स टर्न, द थ्रोन, लाइन्स कंपोज्ड फ्रॉम वेस्टमिनिस्टर ऑन ट्रिंटन अबे. फिर
बाकी जो चीज़ें प्लस प्रेफेस जो उसने लिखा, लिरिकल बैलेट्स का एंड सर्टेन मोर वर्क्स, लूसी ग्रे, द टू अप्रैल मॉर्निंग, द सॉलिटरी रीपर, हमने ये ग्रेजुएशन में बहुत सारे इनमें से पोम्स को पढ़ा हुआ है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये भी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट वर्क था। ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लंदन 1802, द प्रील्यूड 1850 टू द कुकू, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिम। सो ये सारे वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि वर्ड्सवर्थ को एक सुप्रीम पोइट बनाते हैं, सुप्रीम पोइट ऑफ नेचर, जिसके लिए नेचर जो है दैट इज अ सोर्स ऑफ कनेक्शन, जो उसे कनेक्ट करती है नॉट ओनली विद नेचर इटसेल्फ बट विद गॉड एज वेल।